Now we know PPE covers, property, plant and equipment covers tangible non-current assets that are used for production, supply of goods or services, or for rental to others. Next, what we need to learn is the recognition criteria of property, plant and equipment in financial statements. Friends, the discussion of recognition criteria is divided in two parts. रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ने से हमें ये पता चलता है दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज in financial statements and conditions to recognize in financial statements. So in case of property, plant and equipment, we know that how to recognize a property, plant and equipment in a financial statement. A property, plant and equipment is a tangible non-current asset, right? So if an asset satisfies the recognition criteria, that is the conditions given under the recognition criteria, then it will be incorporated in financial statements under the non-current asset as a property, plant and equipment. So how to recognize an asset in financial statements, like how to recognize a tangible non-current asset in a financial statement, that is under the heading non-current asset. Fine. The main thing that we need to learn are the conditions to recognize an asset in the financial statement. So there are two conditions that must be satisfied in order to recognize a property, plant and equipment in financial statements. So condition number one is probable flow of future economic benefits. Condition number two is cost should be measurable. Fine. Let's understand this with an example. Let's continue the biscuit manufacturing example. Now I have a machinery that manufactures biscuits for me, right? I sell those biscuits in the market and earn revenue. So is this machine helping me in getting economic benefits for the entity? Yes. So does the condition of future economic benefits get satisfied? Yes. So the condition number one of future economic benefits is satisfied. Let's look at the condition number two. Now the asset that is manufacturing biscuits for me, I would have purchased it at some day, right? मैंने इस मशीन को कभी ना कभी तो खरीदा होगा, ठीक है? So I should know the price at what I would have purchased the machine, right? So I know the cost of this machine. So is the cost of machine reliable? Yes. Can it be measured reliably? Yes, it can be measured reliably. Yes. So condition number two is also satisfied. So both the condition number one and condition number two are satisfied, and hence the machinery can be incorporated as a non-current asset in the financial statements. Let's move one step ahead. Now, suppose ये जो machine manufacturing, biscuit manufacturing machine ने जो biscuits manufacture किए, they go on for a further processing. That is, ये जो biscuits manufacture हो चुके हैं, मेरी मशीन में कैमरा और सेंसर है जो डैमेज्ड प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जो दूसरे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनसे अलग करता है. तो जो बिस्किट्स नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है या फिर डैमेज्ड हैं उनको दूसरे बिस्किट्स से वो अलग कर देगा जो कैमरा और सेंसर मशीन में लगा हुआ है. फाइन. नाउ दिस कैमरा एंड सेंसर गेट्स डैमेज समडे. आई हैव यूज्ड दिस मशीन फॉर 5 years नाउ, और अब ये कैमरा और सेंसर खराब हो गया और मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे इस कैमरा एंड सेंसर को रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द कॉस्ट टू रिप्लेस दिस कैमरा एंड सेंसर इज 0.2 million. फाइन.
and the cost of new biscuit manufacturing machine is 1 million. अब ये जो मैंने 5 साल बाद मशीन पे जो खर्चा किया 0.2 मिलियन का कैमरा एंड सेंसर को चेंज करने का, क्या मुझे इसे मशीन की ही कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए? जो 5 साल बाद मेरे मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी मेरे बुक्स में, क्या मुझे 0.2 मिलियन उसी में ऐड करना चाहिए, या फिर मुझे ये 0.2 मिलियन P&L में एक्सपेंस ऑफ कर देना चाहिए? फाइन, सो दिस इज द क्वेश्चन. सो इसको कैसे एड्रेस करना है ये हमें IAS 16 बताता है. IAS 16 ये कहता है कि जो भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि वो खर्चा, वो 0.2 मिलियन का एक्सपेंस जो है, अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है. कौन सी 2 कंडीशंस? नंबर 1 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, नंबर 2 कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली. अगर ये 2 कंडीशंस मेरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर सेटिस्फाई करता है तो मैं उसे एसेट की WDV में ऐड कर सकता हूं. फाइन. सो हमारे केस में जो हमने 0.2 मिलियन का खर्चा किया, अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो जो डैमेज प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट जो बिस्किट्स नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, अगर वो मार्केट में जाते तो पब्लिक के नेगेटिव रिव्यूज़ आते. नेगेटिव रिव्यूज़ आते तो कंपनी की गुडविल हार्म होती. कंपनी की गुडविल हार्म होती तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाती. ठीक है, तो कंपनी का जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे, जो रेवेन्यू मिलने वाला था, वो कम हो जाता. लेकिन क्योंकि हमने ये कैमरा और सेंसर रिप्लेस किया, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में गए वो सभी प्रोडक्ट्स सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थे और कंपनी की गुडविल को इसने बचाए रखा, कोई डैमेज नहीं होने दिया, और कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो हुआ या फिर मेंटेन हुआ जो रेवेन्यू था. तो क्या कंपनी का रेवेन्यू कम होने से बचाया, या फिर क्या कंपनी का रेवेन्यू हमारे इस 0.2 मिलियन के एक्सपेंस ने बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ाया. ठीक है, तो क्या ये हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है. ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज सेटिस्फाइड. लेट्स सी कंडीशन नंबर 2. Yes, the cost is measurable as we know that we have purchased the camera and sensor at 0.2 million. Fine. So both this condition 1 and condition number 2 are satisfied. So this 0.2 million can be added to the cost of asset at whatever day this expense is incurred. Fine. So this is called capitalization of subsequent expenditure. So let's read this. Recognition simply means incorporation of an item in the business accounts, in this case as a non-current asset. ठीक है, the recognition of property, plant and equipment depends on 2 criteria. Criteria number 1, it is probable that future economic benefits associated with the asset will flow to the entity. सो हमने देखा मशीन के केस में एंड ऑब्वियसली कैमरा एंड सेंसर के केस में कि दोनों केसेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वर फ्लोइंग टू द एंटिटी. यस. कंडीशन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ द असेट ऑफ द एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ठीक है, सो दीज 2 कंडीशंस वी अंडरस्टूड विद एग्जांपल्स. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द केस ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. These recognition criteria applies to subsequent expenditure as well. यानी यही 2 criterias, criteria number 1 of future economic benefits, criteria number 2 of cost should be measured reliably, are the 2 criteria which should be satisfied in order to capitalize the subsequent expenditure. There are no separate criteria for recognizing subsequent expenditure. For example, if a shop building is extended to include a new cafe as a revenue source, then this meets the criteria of probable future economic benefits and should be recognized as property, plant and equipment. So it is saying that there is a building, there is a store in which subsequent expenditure is done in order to include a cafe. So will that cafe help the store in getting the additional revenue? Yes, it will help the store in getting additional revenue. So can it be capitalized as a property, plant and equipment? So yes, it can be capitalized as property, plant and equipment. Fine. So what we learned is the recognition criteria, how to recognize,
The conditions to recognize, how to recognize is a non-current asset. Conditions to recognize, there are two conditions: future economic benefits and cost should be measured reliably. Fine. And then we understood that for subsequent expenditure as well, only these two criteria are to be satisfied in order to add it to the WDV of the asset. Yes. Now let's move on to cost measurement thing, right? अब हमको पता है जो एसेट है उसकी कॉस्ट हमको पता है कि सपोज मैंने जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग मशीन ली थी उसका कॉस्ट था 1 मिलियन. फाइन. अब ये 1 मिलियन का तो केवल मशीन का कॉस्ट था. उस मशीन को मेरी फैक्ट्री तक लाए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, उसको हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस. सपोज साइट प्रिपेयर करनी पड़ी कि मशीन को मुझे ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड से थोड़े लेवल ऊपर मुझे उसको सेटल करना है. ठीक है. तो सो फॉर दैट आई बिल्ड अ बेस फॉर द मशीन एंड देन इंस्टॉल्ड इट, जिसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस. फाइन. आई अपॉइंटेड सम कंसल्टेंट्स इन ऑर्डर टू गिव मी सम कंसल्टेंसी, और I appointed some engineers in order to ask whether at what location should the machinery be installed so that I can take the maximum benefits out of it, or I can make my process easier. So मैंने engineer को फीस दी. So ऐसे कई तरीके के expenses होते हैं जो मशीन खरीदने के साथ हमको करने पड़ते हैं. ठीक है. So these expenses are known as the expenses that are directly attributable to machine. अब क्वेश्चन ये है कि मैं अपने मशीन को 1 मिलियन पे रिकॉग्नाइज करूं जिस पे मैंने उसको परचेज किया, या 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस कंसल्टेंसी कॉस्ट प्लस साइट प्रिपरेशन कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट को जोड़ के कैपिटलाइज करूं. ठीक है. तो ये जैसे ही हम कॉस्ट मेजरमेंट पढ़ेंगे हमें पता पड़ेगा कि मशीन की कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे हमें इंक्लूड करने हैं. फाइन. Once an item of property, plant and equipment qualifies for recognition as an asset, right? So कह रहा है कि अगर वो recognition criteria satisfy करता है तो it will initially be measured at cost. उसको हम cost पे ही recognize करेंगे. लेकिन अब ये cost है क्या ये समझना जरूरी है. The standard lists the components of the cost of an item of property, plant and equipment. So what are the components of the cost of an item of property, plant and equipment? So components of cost include purchase price less any trade discount. Suppose the cost of your asset is $10,000 and you get 10% trade discount. So the net cost of your asset is $9,000. Number 2, import duties. Suppose you have paid 10% import duty on $9,000. So that will come up to $9,900. Right. Third one, directly attributable cost of bringing the asset to its working condition. Friends, this word is very important. Costs that are directly attributable to bring the asset to its working conditions must be included in the cost of asset, that is it must be capitalized. Fine. So देखते हैं कि directly attributable cost क्या है. ये जो directly attributable cost है ये वो खर्चे होते हैं आप asset लाए तो ही आपको ये खर्चे करने पड़े. अगर आप asset खरीदते ही नहीं तो आपको ये सारे खर्चे नहीं करने पड़ते. फॉर एग्जाम्पल आप मशीन लाए तो ही आपको मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ा. Yes, so that is a directly attributable cost. बट आपके जो लेबर्स जो आपके प्रीमाइसिस में काम करते हैं या जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी तो कॉन्स्टेंटली चालू ही है. ठीक है. तो वो लोग भी अगर इस मशीन के इंस्टॉलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी सैलरी का कुछ प्रोपोर्शन हम क्या एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे. उसका रीजन है क्योंकि वो सैलरी एक्सपेंस तो मशीन आए चाहे मशीन ना आए वो खर्चा तो हमारा होने ही वाला था. दैट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस. सैलरी ऑब्वियसली आपको हर महीने आपके एम्प्लॉयज को पे करनी है. तो ये हुआ वो खर्चा जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब जो खर्चा मशीन लाने से हुआ, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. ठीक है. तो ये वो खर्चे हैं जो आप मशीन लाए तो आपको ये खर्चे करने पड़े, तो इनको कहेंगे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस और इनको हम मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे.
ठीक है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट मैंने आपको समझा दिया पहले ही, ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा, जो आपने मशीन लाए उसको आपने इंस्टॉल किया, ठीक है, आपने साइट प्रिपेयर किया, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था दैट यू वांट टू इंस्टॉल योर मशीन समवेयर अबव द baseland, right? You want to install it suppose 5 feet above the baseland, fine, so you will prepare the site for such installation, right? तो जो साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस होगा वो भी कैपिटलाइज करेंगे। उसके बाद उस प्रिपेयर्ड साइट पे जो आपको मशीन इंस्टॉल करके देंगे इंजीनियर्स, उनका जो कॉस्ट होगा वो भी हम कैपिटलाइज करेंगे, फाइन। टेस्टिंग कॉस्ट, सो व्हाट इज दिस टेस्टिंग कॉस्ट? आपने जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीदी थी, अब भाई साहब उसमें से बिस्किट ही निकल रहे हैं ना, आप ट्राई करेंगे कि उसमें से बिस्किट बन रहे हैं और जिस शेप के बन रहे हैं, जिस शेप के आप चाहते हैं उसी शेप के बन रहे हैं, ठीक है, कहीं उसमें से चॉकलेट तो नहीं निकल रही, ठीक है। तो आप जब मशीन लाएंगे तो आप मशीन को ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जब टेस्टिंग करेंगे तो उसमें से कुछ ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। आपने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग मशीन को टेस्ट किया, उसमें से आपने बिस्किट्स बनाए, तो ठीक है। तो सपोज आपका टेस्टिंग का जो कॉस्ट आया वो आया 1000 रुपीज़, फाइन। और उसमें से जो बिस्किट्स बने, फाइन, उसको आप सेल करते हैं। सपोज पैक करके सेल नहीं किए, आपने एक नॉमिनल प्राइस पे उसको सेल कर दिया और वो आपने सेल किया 500 रुपीज़ में, तो आपका नेट टेस्टिंग एक्सपेंस कितना हुआ? 1000 रुपीज़ टेस्टिंग माइनस जो उससे प्रोड्यूस हुआ उसको सेल करने का इनकम, तो 1000 माइनस 500 रुपीज़, so your net testing expense is 500 rupees, so that 500 rupees should be added to the cost of asset। वही लिखा है फ्रेंड्स, टेस्टिंग but net of any proceeds on sale of items produced, fine। next point, प्रोफेशनल फीस, जैसे मैंने आपको बताया आर्किटेक्ट इंजीनियर्स को आप बुलाते हैं आपके मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, so that you can know where to install the machine, so that you can get optimum benefits, maximum utilization of its production capacity, फाइन। तो उनको जो आपने फीस पे करी वो भी हम क्या करेंगे? मशीन के कॉस्ट में ऐड करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे? मशीन के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज करेंगे, फाइन। सो दीज आर द कॉस्ट्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड, एंड देयर इज वन मोर कॉस्ट दैट इज इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट। ये जो कॉस्ट है ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम इस पे एक सम करेंगे, इस पे क्वेश्चन है नीचे, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, फाइन। फॉलोइंग कॉस्ट्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट अनलेस दे कैन बी अट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द एसेट्स एक्विजिशन और ब्रिंगिंग इट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन। तो नीचे जो 3 कॉस्ट दी गई है, ये तीनों कॉस्ट हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ ऐड नहीं करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे अनलेस दीज कॉस्ट्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। ऑब्वियसली अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है तो हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज, फाइन। तो जनरली ये जो 3 खर्चे दिए हैं ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते हैं, फाइन। जैसे administration and other general overhead costs, so these costs include costs like salary, other employee benefits, fine, it will include your marketing costs etc। तो ये सारे खर्चे तो आप मशीन लाए चाहे मशीन नहीं लाए आपको आपके बिजनेस के लिए करने ही थे, ठीक है। तो these are not directly attributable, hence this will not be included in the cost of your machine। Second, startup and similar pre-production costs. You are starting up a new business, you need to take permissions from various government agencies, you will appoint some lawyers for that, ठीक है। You will construct a basic structure or hire or get some premises on rent, you will pay deposits for the same, so all these expenses that you are going to incur will not be capitalized in the cost of machine, right? All these are startup and pre-production expenses, these expenses you are doing to start your business, ठीक है। तो आप ये जो खर्चे हैं ये मशीन से डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, फाइन। नेक्स्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस before the asset reaches the planned performance,
ठीक है. सो व्हाट आर दिस इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस? सपोज आपने जो एसेट खरीदा उसमें से हर 100 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट डैमेज निकलने वाले थे. ये आपको पता है कि ये अगर मैं एसेट खरीदूंगा, और आपका जो सेलर है जिसने आपको मशीन सेल करी उसने भी बताया था कि हर 100 में से मतलब देयर आर 2% चांसेस ऑफ नॉर्मल लॉस. ठीक है, हर 100 में से 2 प्रोडक्ट डैमेज निकलेंगे. फाइन. लेकिन आपने जब मशीन खरीदी और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मशीन को कई बार फ्रेंड्स क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मशीन को सेटअप करने में आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके खुद के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन को सेटअप करने में टाइम लगता है. फाइन. उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एट द सेम टाइम. आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो मशीन में क्या दिक्कतें हैं वो पता पड़ेंगी. ठीक है, फिर आप उन दिक्कतों को सॉल्व करके आपके मशीन को आपके प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. फाइन. तो हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस लेवल था 2% नॉर्मल लॉस, 100 में से 2 प्रोडक्ट डैमेज निकलेंगे. लेकिन जब आपने मशीन यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपको पता पड़ा कि 20% डैमेज हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स. फाइन. 20%. और ये 20% डैमेज होने की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे बल्कि आपको हो रहे लॉस. ठीक है, और ये जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, टिल योर मशीन रीचेस योर प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी पहले 20% होगा, फिर 18%, फिर धीरे धीरे मशीन में इंप्रूवमेंट आएगा, फिर 15%. राइट. तो ये जो लॉसेस इंकर हो रहे हैं आपको, ठीक है, मशीन को सेटअप करने के लिए, फाइन, जिसको बोलते हैं हम इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस टिल द मशीन रीचेस इट्स प्लान्ड परफॉर्मेंस. तो ये जो एक्सपेंसेस है इसको भी हम मशीन के कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस कॉस्ट आर नॉट इंकर टू ब्रिंग द मशीन टू इट्स वर्किंग कंडीशन. मशीन इज ऑलरेडी इन इट्स वर्किंग कंडीशन. मशीन प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट्स, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए मशीन प्रोड्यूस कर रही है. इट इज जस्ट दैट इट इज जो डैमेज प्रोडक्ट्स का प्रपोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं. सो यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट प्रपोर्शन ऑफ डैमेज्ड प्रोडक्ट्स. फाइन. सो ये जो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस है बिफोर द एसेट रीचेस प्लान्ड परफॉर्मेंस, ये भी आपके कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा. फाइन. तो नहीं होगा इंक्लूड, तो हम इनका क्या करेंगे? सो ऑल ऑफ दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस. उसको पीएनएल में क्या कर देंगे हम? डेबिट. क्या कर देंगे? एक्सपेंस ऑफ. फाइन. सिंपल. Let's have a look at an example on this. Moon Limited incurs following costs in relation to the construction of a new factory and introduction of its products to the local market. Fine. So, these are the costs that Moon Limited is incurring, and these are the costs that we will capitalize. ठीक है. सो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, तो जैसा कि हमने पढ़ा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे. यस, तो हमने किया है. फाइन. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे. यस, बिकॉज इट इज द कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग मशीन टू इट्स वर्किंग कंडीशन. फाइन. लेकिन ये एग्जाम्पल फ्रेंड्स मशीन का नहीं है, ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री का. ठीक है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए जो मटेरियल लाए, क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे? यस. साइट प्रिपेयर किया, उसको कैपिटलाइज करेंगे. यस. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो लोग लगे थे मशीन फैक्ट्री को बनाने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको जो पेमेंट दी है, क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे? यस, वी विल कैपिटलाइज इट बिकॉज ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री. समझ आ रहा है? ये हम सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स. मशीन के केस में हमने मशीन बाय की थी और एक्सपेंसेस इंकर किए थे सेटअप के लिए. ठीक है, इंस्टॉलेशन, कंसल्टेंसी वगैरह, ये हम लोगों ने लेबर्स बुला के, इंजीनियर बुला के हम लोग खुद कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट भी हमको ही डालना है, लेबर को भी हमको ही पेमेंट करना है. फाइन. तो इसलिए लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट क्या हो गए? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द असेट. टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री. यस, सो विल ऑल्सो कैपिटलाइज दिस. Next is consultancy fees for installation of the equipment. Okay, directly attributable, so we'll capitalize it. Relocation of staff to a new factory, तो ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, जिससे आपकी ओल्ड फैक्ट्री से आप स्टाफ को लाए न्यू फैक्ट्री पे. फाइन. तो इसका कोई कंस्ट्रक्शन से लेना देना है क्या? नहीं है. तो क्या ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? नहीं है. सो विल वी कैपिटलाइज इट टू द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू फैक्ट्री? नो, वी वोंट कैपिटलाइज इट. फाइन. जनरल ओवरहेड्स,
सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह. एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल. हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द असेट. ये क्या एक्सपेंस है? क्या लिखा है फ्रेंड्स? एस्टिमेट ऑफ अनअवॉइडेबल. हाँ, दिस इज एन एस्टिमेट, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉस्ट. फाइन. डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट. आपने जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं वो सपोज एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है. जिस लैंड पे करवा रहे हैं वो लैंड आपकी नहीं है, आपने वो लैंड लीज पे ली है. अब जिस बंदे से आपने ये लैंड लीज पे ली है, उस बंदे को आपने कहा कि 10 साल बाद आपको लैंड वापस मिल जाएगी. 10 ईयर्स का लीज अग्रीमेंट है, और लीज अग्रीमेंट ये कहता है कि ये जो लैंड है उसको उसी कंडीशन में चाहिए. जो लेसर है जिसने आपको लैंड दी है, उसको ये लैंड उसी कंडीशन में चाहिए जिस कंडीशन में बिफोर कंस्ट्रक्शन है. सो ऑब्वियसली आपको सब डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी आपका जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको सब सामान हटा के आपको उसको लैंड क्लियर करके देनी पड़ेगी. तो 10 साल बाद ये एक्सपेंस होने वाला है आपका. ठीक है. तो IAS 16 ये कहता है कि आपका 10 साल बाद जो एक्सपेंस होने वाला है, यू टेक आउट एन एस्टिमेट कि कितना एक्सपेंस होगा आपकी फैक्ट्री को डिसमेंटल करने का, और उस कॉस्ट को भी आपके फैक्ट्री के कॉस्ट में इंक्लूड करो. लेकिन इंक्लूड तो करो, लेकिन एट प्रेजेंट वैल्यू. फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये हम समझेंगे. यस, सो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आज बैंक में 100 रुपए डाले. ठीक है. अब 1 साल बाद ये 100 रुपए कितने, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न उस बैंक में, सपोज आपने सेविंग अकाउंट में डाले 100 रुपए, और सेविंग अकाउंट में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज रेट ऑफ रिटर्न है 5%, तो आपका 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 105. ठीक है. तो ये हुआ वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. फाइन. अब ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में आपको सपोज 105 पे और 5 रुपए इंटरेस्ट मिला. ठीक है, 5 रुपीज. ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए 5%, बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इट एग्जैक्टली. लेट्स कीप इट 5 रुपीज. सो नाउ इट कम्स टू 110. फाइन. सो दिस इज वैल्यू आफ्टर 2 years. अब मुझे पता है कि 2 साल बाद 110 वैल्यू है, और मुझे पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. तो आज की वैल्यू क्या होगी? सो आई विल डिस्काउंट दिस टू टुडे. फाइन. एंड हाउ इज दिस डिस्काउंटिंग डन? I will divide 110 by 1.05 into 1.05, and it will come to 100 rupees. So 100 rupees is present value of 110. 110 कब की वैल्यू है? 2 साल बाद की. ठीक है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%. सो आई नीड टू टेक आउट प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू इज समथिंग विच इज टूडेज वैल्यू. फाइन. एंड वैल्यू आफ्टर 2 years is 110. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट बाय यूजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू टूडेज वैल्यू. फाइन. तो हमारे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%. सो विल डिवाइड 110 by 1.05 into 1.05 2 times. Right? This is for first year, this is for second year, and we'll get rupees 100. So this is how present value is calculated. In the same way, we need to estimate the value of dismantling, cost of dismantling after 10 years. एंड जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सपोज अगर ये पैसा मैं FD में लगाता
तो 10 साल तो FD का रेट, सपोज लेट्स टेक अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं. फ्रेंड्स, दिस कंसेप्ट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेकिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू यू विल लर्न इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जब आप FM पढ़ेंगे तो उसमें यू विल लर्न हाउ टू टेक आउट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ. तो जो FD का रेट होता है, सपोज विल टेक दैट, सपोज 10 साल बाद मेरा खर्चा होने वाला है 100 रुपए. ठीक है, सो आई विल डिवाइड 100 by 1.08 raised to 10 and whatever amount will come will be today's value. Fine, so this is how we take out present value. तो इसमें क्या लिखा है, estimated cost to dismantle at present value. So estimated cost to dismantle at present value is 200. Estimated cost to dismantle might be something different, but estimated cost to dismantle का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आज का वैल्यू 200 रुपए. फाइन, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में आपको ये कॉस्ट ऑलरेडी एग्जाम में दिया होगा, एंड जस्ट यू नीड टू, अगर नहीं भी दिया है तो यू विल लर्न हाउ टू टेक आउट प्रेजेंट वैल्यू इन सम अदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फाइन, so this cost will also be included in total value of your asset, and it comes to 4,000.